फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन ने एक बाई क्रिएट किया है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ये 50% का लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसके थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा यहाँ पर, और टारगेट ये जो उससे थोड़ा पहले लगाएंगे। तो इससे क्या होने वाला है? विल हैव अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1.6. So let's wait and see how this performs. What happened here is simple, friends. It has given a clear break this here, okay, and it has come to retest. Retest was much below this. Still here it has come for a retest, and give any closure there? No. It quickly came back and gave a doji kind of candle. So you might have noticed was another attempt to go down here, which failed. Now, because are not looking clear, I'm moving these wicks to dark side so that you can see that attempt here. Okay, you can see this. At this level, this support should act. Okay, this was your perfect 50%. One could have entered here also, where it is a breakout and retest. We entered at 38.2, where I usually enter. Okay, anyways, part of the game. Some losses will happen. Anything below this, if it touches the stop loss, that means this trend is no longer valid, friends. It will also cross this trend line. So we will exit, considering that our trade went wrong, and we will accept the stop loss. चलो फ्रेंड्स, ये पहुंच गया बैक टू पेविलियन. अपना जो प्लस था वो लगभग कितने पॉइंट्स रह गया? ये लो बनाया है 350 का. अपना स्टॉप लॉस था 343 का, लगभग 8 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स से अपना स्टॉप लॉस रह गया है. और मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या एग्जैक्ट लॉजिक है स्टॉप लॉस का भी. Friends, here at this point I wanted to make the point. See, if you look carefully here, what do we see? We see a left shoulder, a head, and a right shoulder. There will be a breakout like this, followed by good upward momentum. Friends, it has gone very close to our target. 74.86 was our target. So another, how many points? 12-13 points is what is left. Wait, no problem. I'll give you the complete reason for this particular trade, or trade is completed. Friends, मैंने क्या किया है? I have checked how much is the head. That much should be your target. So this is your target, not even this. With good possibility, this will go further up. Okay. I hope you understood how I saw that. See friends, good possibility of this breakout, retest, and momentum is here. Just for your convenience, I'm drawing this Fibonacci. This is the bottom here. This is your bottom, the top. Okay, 23.6, and upward momentum can happen. तो ये देखो, ये जो हाई बना है ये कैंडल में 1029 का कैंडल है. ये हाई है 78 का.
78.3 का हाई है और अपना टारगेट था 80। प्रीवियस हाई जो था वो था 75 के बाद 78 बनाया। 83 अपना टारगेट है, टारगेट पे ही एग्जिट होना है, यहाँ कहीं भी एग्जिट नहीं होना है। Friends, what I feel here is there is a attempt of a double top that is being shown here. Okay, at this double top it will start, okay, and that's when it will break this neckline, stay here for some time, and then give a big upward momentum. Okay, so that's what I feel. Now, in spite of that, in spite of my feeling is, what we are going to do here is we will move our stop loss. Okay, so we will zero here. In case it comes down like this till here or even till here, we will take exit, because this line is coming upwards, friends. Okay, another trend line is there here. Okay, this is forming a pattern. This is called the upward wedge pattern. Okay, so possibility that this pattern will give a breakdown and continue its momentum downwards. So when there is an upward wedge pattern and we are trading the pattern, we will trail our and not the profit which we get. तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो हाई लगा है ये ग्रीन कैंडल का, वो है 85। अपना टारगेट जो है वो है 86.35, यानी ₹1.35 से अपना टारगेट अभी भी रह गया है। लेट्स वेट, जल्दी नहीं है। मुझे लगा यहाँ तक तो पक्का जाएगा, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ये 604 एक राउंड नंबर भी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फट से एक और फ्लिप मारेगा, 604 को खाएगा और उसके बाद नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नहीं पता। और जैसे ही यहाँ आके इसके ऊपर जाएगा वैसे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अपना 1:1.7 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, और उसके बाद हम आपको सारे रीजंस बताएंगे जिससे हम ट्रेड लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रेड कैंडल जो फॉर्म हो रहा है, इसने 88 का हाई लगाया है। ये अपना टारगेट था 86, सो टारगेट अचीव्ड। ओके, कमिंग टू द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। चलो एक नया फ्रेश चार्ट खोल, उसके ऊपर अपन देखें क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों निफ्टी का नया चार्ट, ब्रांड न्यू, नो कंफ्यूजन हियर। 5 मिनट से हम ले जा रहे हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखो कल से ये क्या है, ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड है जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, आज यहाँ गैप अप दिया और इसने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट किया। अभी ये ट्रेंड का टॉप और बॉटम हम लोग पहले ये करते हैं। तो रीजन नंबर 1 क्या है, अप ट्रेंड। ठीक है, रीजन है हम ये पर्टिकुलर इसका फिबो लगाते हैं। फिबो में क्या करते हैं हम, ये है बॉटम, ये है, ठीक है, ऐसा फिबो अपन ने लगाया और फिर चले इसमें देख लो 22 पे अपना एंट्री हुआ, ऑलमोस्ट 922। 922 कहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है। ठीक है, 922 पे एंट्री हुआ, 922 पे हम एंट्री मारते हैं बैंक निफ्टी में। देखो यहाँ पर 922 पे क्या हुआ था ये भी समझो। 922 पर 920 पे इसने 38.2 का लेवल लगाया और 22 पे एक सेकंड बॉटम जैसा फॉर्म किया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने वो सेकंड बॉटम पे एंट्री ली और टारगेट क्या रखा, ऑफ कोर्स द डे हाई जो कि यहाँ कहीं है। ठीक है, 80
5 और अपना स्टॉप लॉस क्या रखा अपन ने, ये जो 61.8 लेवल से उसके थोड़ा सा नीचे, यहाँ देख सकते हो लॉस अब तो निकल गया है, लेकिन स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कहीं लगाया था अपन ने, रिवाइंड करके देख लो जिसको डाउट होगा। प्रीवियस स्विंग थोड़ा सा नीचे अपन ने स्टॉप लॉस लगाया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक और डिप मारी और फिर अपने टारगेट की तरफ चला गया। थर्ड पॉइंट क्यों अपन ने यहाँ बाई किया, देखो इससे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप था, ठीक है, यहाँ जो था ये गैप था, तो इसने यहाँ पर आकर एग्जैक्टली कल का जो क्लोजिंग है वहाँ गैप फिलिंग किया। गैप फिलिंग पे हम क्या करते हैं, दिस गैप फिलिंग यूजुअली ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो एक गैप फिलिंग के रीजन से भी एंट्री ली। और फोर्थ रीजन जो है एक ब्रेकआउट टू रीटेस्ट, ये जो है ये होता है, ये ब्रेकआउट जो होता है, देखो ये आउट हुआ यहाँ से, मार्केट जो है ऐसे ऊपर गया, while going up it gave this breakout like this and then it came to retest, so good possibility it can retest line जो उसने किया बाद में, बट यहाँ पर यूजुअली 38 पॉइंट पे हम this is the place where there is good risk to reward ratio that can come, and that's exactly where we entered. so ये सारे के सारे रीजंस से हमने एंट्री किया। अब दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि 46,400 का अगर कॉल लेते हो आप, तो उसने कितने बजे 9:22 को 9:22 यहाँ पर है 9:22, ठीक है, 5 मिनट्स में देखते हैं, 1 मिनट में देखते हैं, 9:22 है यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखिए कि 9:22 यहाँ है, तो ये लेवल जो है 430 से 500 तक वो जा चुका था, 510 अगर पे अपना कहीं एग्जिट हुआ है, तो 430 टू 15% फ्रेंड्स, 15% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बन गया है। अगर आप 15% देखते हो तो लगभग एक 6,000 का कॉल 7,500 या 1,500 से 1,400-1,500 रुपये दे देता है, तो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दैट वी आर वर्किंग विद। अभी आप इसमें 1 लाख लगाते हो तो आपको कितना 15% रिटर्न, फिर 15,000 मिल जाए, जो 10 लाख लगाता है उसको 1.5 लाख मिलेगा, तो वो अलग है। आपको सीखना क्या है, ये सीखना है कि कैसे मोमेंटम हुआ है और अपन ने क्या रीजन से ये ट्रेड। इसके बाद क्या क्या देखा अपन ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा इन्वर्टेड, उसका ब्रेकआउट देखा और वेट किया, ठीक है। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है एंगल जो है ना फ्रेंड्स, ये ऊपर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, यानी नीचे से कहीं ना कहीं एक प्रेस, देयर इज अ प्रेस डाउनवर्ड्स, सो दिस इज एन एग्जॉस्टिंग एंगल फॉर बायर्स, बायर्स जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। पॉसिबिलिटी है अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से फट से फॉल होगा, ठीक है, तो ये मैं ये देख रहा था कि ये फॉल भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ डबल टॉप दिखा वैसे ही यहाँ का स्टॉप लॉस 0 और वेट किया, अगर बाई चांस स्टॉप लॉस पे आता है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, अगर कोई डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट्स में डालो, आई ट्राई देम आल्सो। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये ट्रेड में हम लोग ऑलमोस्ट 9:22 से 10:53 यानी 1.5 आवर 1 आवर 35 मिनट्स 40 मिनट्स इस ट्रेड में है। आपको वीडियो बहुत छोटा मिलेगा, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ रहेगा वीडियो, ओके। चलो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।